Yeah, good morning, everyone. In the last class, I did talk about a relation, and relation is defined as any subset of A cross B, and A and B are two non-empty sets. So that way, using the idea of Cartesian product of two sets, we did talk about a relation. So let us continue with the idea of a relation, and I'll take few questions from NCRT exercise 2.2 itself. Take this out for the better understanding. Sixth question: determine the domain and range of the relation R, which is defined as x comma x plus 5. This is the ordered pair, and x is given belongs to 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So this is clearly visible. X can take any of the following six values. So therefore, R can be when x is 0, y will be, or y means this element will be 0 plus 5, which is 5. Next, when x is 1, you just need to add 5 in this. 2, add 5 to this, 7. 3, 8, 4, 9, 5, 10. And check it out, since our last entry is 5, so x cannot go beyond that, and that will be our required relation. And how we define the domain and range? So domain is basically nothing but all first entries. First entry is referred to 0, 1, 2, 3, 4, 5. So in our ordered pair written, the first entry refer to the domain, and the second entry will always refer to the range. So in our this case, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. That will be your required range. Check this out. Seventh question was already discussed in the last class itself. Yes, sir. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एट्थ क्वेश्चन इज डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन. क्या कह रहे हैं? If A is x, y, z, B is 1, comma 2, find the number of relations from A to B. So check it out. Cardinality of A is 3. 3 elements हैं. Cardinality of B is 2, as it contains 2 elements. और फॉर्मूला हम कर चुके हैं. Total number of possible relations जो होंगे फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी 2 की पावर mn. m का मतलब फर्स्ट वाले की कार्डिनलिटी, और n is the cardinality of second set, which is 2 power 6. 64. Your required answer. Yes. Ninth question is a very simple and logical question. देखिए क्या कहा है. Let R be the relation on Z, और डिफाइन क्या किया है? A comma B such that AB belongs to Z and A minus B is an integer. So find the domain and range. Think logically. When you are already given that A is integer, B is integer, and in 6th class only we have studied A minus B will always be an integer. Difference of any two integer is always an integer. So what does that mean?
कि व्हाट विल बी द डोमेन। डोमेन का मतलब Integers. यस, डोमेन का मतलब ए क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, दैट इज इंटीजर। और रेंज ए माइनस बी से मिल रही है, दैट आंसर कैन ऑल्सो बी ऑलवेज इंटीजर, योर रिक्वायर्ड आंसर। So these are probably very simple and direct question based on the idea in NCERT. कुछ क्वेश्चंस अब हम असाइनमेंट से ले रहे हैं। चेक आउट विद दिस क्वेश्चन, ट्राई इट आउट, आई एम वेटिंग। समझिए क्या करेंगे। रिलेशन की डेफिनेशन को सबसे पहले समझना है। R is a relation collection of all xy such Sir, that A is 1 and B is 2. okay, Yes, sir. चेक कर लेते हैं। और y is 2x minus 4. So this definition जो हमें given है, this is very important of course here, and अब कहा है a comma minus 2 and b comma 4 comma b square belongs to this relation. First part, given a comma minus 2 belongs to R, इस रिलेशन में बिलोंग करने का मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये x है, तो ये हो गया y। तो व्हाट विल दैट गिव अस? y विल बी 2 into x की जगह a रखा and minus 4. So that will give me minus 2 plus 4 is 2a, or 2a is 2. So the first part is okay, a is 1. सेकेंड पार्ट के लिए 4 कामा बी स्क्वायर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? y is equal to this, I hope this is clear, और b स्क्वायर आ गया 4, तो b कितना आ जाएगा? What will be the value of b? Sir, 2 root 4 plus minus root 2. It is plus minus 2. 11th में ये चीजें मैं कैसे सिखाऊंगा आपको, ये बेसिक प्लीज ध्यान से समझिए। आपके पास कोई रीजन नहीं है रिजेक्ट करने का। x एंड y बोथ आर इंटीजर, तो a 1 है एंड b इज प्लस माइनस 2। जैसे ही आपने मान लीजिए b की वैल्यू को आपने 2 कह दिया, इनकम्प्लीट आंसर हो जाएगा। और किंशु को आप x1 और y4 कह रहे हैं, सॉरी ये सर, मुझे वो समझ नहीं आया। मिस्टेक हो गई। Yeah. Check out this question. I think we already have done this. Let a relation R is defined on integer such that this similar question किया है, not exactly the same. Express R as a set of ordered pair. Now the only difference is it is the collection of integers. तो check it out. ये notation को भी समझ लीजिए कि ये xy imply क्या कर रहा है, ये condition. And this is same as writing the relation R x comma y such that x square plus y square is 25. X and y both are integers. So I'm sure idea is clear.
चाहे नोटेशन ये होती या ये, दोनों सेम चीज डिपिक्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, एक तो इंटीजर्स हैं एंड x square plus y square is 25. So you have a basic idea, I'm sure, कि जब आप x को लेंगे 0, इंटीजर है, पहले मैंने पॉजिटिव इंटीजर से शुरू Sir, किया। we have done this. एक पार्ट रह गया था, हमने उस समय नेचुरल नंबर्स में बात की थी। सर हमने माइनस में वाले नहीं लिए थे। यस, तो इसीलिए अब की बार आई हैव नो रीजन टू रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यूज, तो ये भी आंसर है और ये भी मेरे आंसर का पार्ट होगा। दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू डिस्कस। फिर आपको पता है x को 1 रखेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा 24, इंटीजर नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। बट जैसे ही आप x को 3 रखेंगे, x स्क्वायर को कितना आ गया 9 और ये आ जाएगा 16 और y विल बी प्लस माइनस 4। तो दिस विल गिव मी नाउ 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस। इनफैक्ट जो x इक्वल टू 3 से आया है, सोच के देखिए, अगर x को मैं -3 सोचता तब भी आपके पास इस तरह से 2 सॉल्यूशंस आ जाते, क्योंकि अब की बार x एंड y आर इंटीजर्स। तो 4 रखेंगे तब आपके पास 4 3 4 -3 आएगा। व्हेन x इज 5 या -4 चलो रख दिया, देन -4 3 एंड -4 आ जाएगा, -4 -3 -4 -3। यस -3। ऐसे ही आपको x को रखना होगा 5, x को रखेंगे -5, then you will get your required answer. So that all collection will be there, right? तो similar question हमने natural में किया था। Integer में number of solutions, the elements in that will increase. So complete in your homework, डायरेक्ट है वैसे ये क्वेश्चन। अब एग्जाम में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन में डेफिनेशन में 25 दिया था, उसको मान लो 16 कर दिया, 9 कर दिया, तो समहाउ सिचुएशन सिमिलर ही रहेगी। Determine the domain and range of the following relations. A part, आप चेक करिए x इज लेस देन इक्वल टू 4 है एंड नेचुरल नंबर है, तो x क्या हो गया 1 2 3 4, 4 को इंक्लूड किया गया है। अब आप चेक करिए, देयरफॉर आवर रिलेशन लिखना शुरू करूं अगर मैं डायरेक्टली, ऐसे करते हैं, व्हेन x इज 1, तब आप चेक करिए एलिमेंट क्या बनने वाला है, यहां पर x को 1 रख दीजिए, तो 4 + 3 कितना आ गया, ये 7 7, 0 0। Similarly, when x is 2, 11 11, -1 -1. and -1, perfect. Similarly, you can check out for 3 and 15, -2 3 के ऊपर कितना आ रहा है 15, -2 15, -2 and here 4 रखा तो 19, -3 -3। तो therefore रिलेशन क्या बन गया 7 0 11 -1 15 -2 19 -3। and once the relation is written, हमें पता है domain of this relation would be all first entries and range would be our all second entries. 0, -1, -2, -3 That will be our required answer. Yes, ठीक है सुकेत, ठीक है आंसर आपके। Check out the B part. Not a different kind of a question. I'm sure each and every one of you can attempt this question. So I keep this for your homework. बहुत सिंपल है।
आउट दिस क्वेश्चन. सिंपल है बट इसे अभी करके देखिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. So first is 8,3. ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं. सर 8 कॉमा -3. अच्छा चलो. व्हेन x इज 4, आप चेक करिए ऑर्डर्ड पेयर में x की जगह मैं 4 लिखकर देख लेता हूं. जस्ट टू अवॉइड एनी मिस्टेक मैं पूरा ही सेट लिख देता हूं. तो ये कितना आ गया एलिमेंट? 8 एंड दिस इज 6 अपॉन -2. ठीक है, वो गलती समझ आ गई होगी. 8 कॉमा -3 इज द फर्स्ट एंट्री. यस, ठीक है. निखिल का और आगे भी सुकेत का भी आंसर आ रहा है. ओके, check it out. When x is 5, अब आप x को जब 5 रख रहे हैं, so that this will be 9 comma 7 upon -3. वो -7/3 दे देगा. I hope the idea is clear. -7/3 आ रहा है. And similarly, when x is 6, 10, -2. 6 प्लस ये सॉरी ये 2 आएगा यहाँ, और यहाँ 2 - 6 हो गया. एंड दैट वुड बी 10 कॉमा 8/-4, which is 10 comma -2. Yes, good. So इसका मतलब सिंपली मेरे पास रिलेशन R क्या था? 8 comma -3, 9 comma -7/3, 10 comma -2. Once the written we are able to write the relation, easily हम बता सकते हैं इसका domain and range. Yes, so domain would be 8, 9, 10 and range would be -3, -7/3, -2. Answer. A very similar question, वो आपको होमवर्क में मिल जाएगा. नेक्स्ट जो अब हम बात कर रहे हैं दैट इज अबाउट द फंक्शंस. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एक्सटेंशन है रिलेशन से ही. एंड फंक्शन को हम स्टडी करते हैं एज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रिलेशन. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फंक्शन. फंक्शन, let x and y be two non-empty sets. The relation f from x to y is said to be a function. अब एक रिलेशन को ही हम फंक्शन कब कहेंगे? When every element of x has a unique image in y. ना दिस जो मैंने डार्क ये इससे अंडरलाइन की हेडलाइट करा, इसे करा है अंडरलाइन. इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए क्या मतलब हो रहा है. लेट्स से देयर आर सेट्स x एंड y, और ऐसे हम डिनोट करेंगे एक फंक्शन f को. f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. और अब इस केस में कैसे मैं चलो डिफाइन करता हूं, जो डेफिनेशन कह रही है उसके अकॉर्डिंगली. एवरी एलिमेंट ऑफ x इज टू बी यूज्ड. माने अगर यहाँ 1 2 3 4 है, इधर a b c d e है, तो बाय द डेफिनेशन क्या हमें समझना है? एवरी एलिमेंट ऑफ x टू बी यूज्ड. मतलब 1 विद चलो a कर दिया,
2 विद बी कर दिया, 3 विद बी कर दिया, एंड से 4 विद सी। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, एवरी एलिमेंट को यूज करा है। और अब मैं देखता हूं सेकंड चीज क्या कह रहे हैं, हैज, एवरी एलिमेंट जो है हैज अ यूनिक इमेज इन वाई। तो 1 के लिए ए यूनिक है, 2 एंड 3 इनके लिए बी यूनिक है, एंड 4 के लिए सी यूनिक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन पॉसिबल फंक्शन। और इसे मैं कैसे लिखूंगा, ये फंक्शन एफ क्या हो गया, 1 with A, 2 with B, 3 with B, and 4 with C। और सिमिलर वे में ही ये बाद में वैसे हम लिख रहे हैं, बट डोमेन ऑफ एफ जिसे हम ऐसे लिखेंगे, डी के नीचे छोटा सा एफ सबस्क्रिप्ट, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल फर्स्ट 1, 2, 3, एंट्रीज। 4. एंड रिमेंबर, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है, domain is fixed, it is always the first set। domain हमेशा पहला सेट होगा, और कोडोमेन हमेशा बाद वाला सेट होता है, जैसे हमने रिलेशन में डिफाइन किया था। What will be the range of this function? ABC. What elements are used up? ए, बी एंड सी को ही तो यूज किया था हमने यहां से। तो इन जनरल अगर आप नोट करें, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो अंडरस्टैंड दिस, इसी को ऑल्टरनेटिवली वे में बताया है। रिलेशन क्या है, एक स्पेशल फंक्शन कब हो जाएगा, इफ डोमेन हो जाए x के इक्वल, वो हमने देख ही लिया है कि डोमेन हो जाए x के इक्वल। एंड सेकेंड कंडीशन क्या रही है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन f हैज द सेम फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब इस चीज को समझने के लिए प्लीज इस एग्जांपल को, मैं नीचे एक डायग्राम बना रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैंने ये लिया, ये है x, ये है y, आप a और b कुछ भी कह दो, सेट्स। ये मैंने लिखा 1 2 3 और इधर कर दिया से a b c d। लेट से मैंने एरो डायग्राम्स क्या बनाए हैं, 1 विद a एंड से 1 विद b, 2 विद c एंड 3 विद d। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, ये फंक्शन है या नहीं है? Sir, no. Why it is not a function? हर एक एलिमेंट यूज हुआ है x का। Because sir, it is one too many. Because one is repeated. Yes, so the basic idea, देखो पहली कंडीशन तो यहाँ ट्रू हो गई, डोमेन है, ठीक है, वो सारे एलिमेंट को यूज करा है। बट सेकंड कंडीशन के हिसाब से 1 के लिए यूनिक इमेज होनी चाहिए थी, और 1 के लिए 1 ए भी इमेज है और 1 के लिए बी भी इमेज है। तो अगर आपके पास इन सिंपल वर्ड, अब मैं बता रहा हूं, लेस देन की तरह अगर दिख जाए, जैसे यहाँ ये दिखा है ना साइन, लेस देन की तरह लग रहा है, अगर लेस देन टाइप एरो डायग्राम आ जाए, इट इज क्लियरली नॉट अ फंक्शन। अगर जैसे ऊपर वाले केस में था, ग्रेटर देन की तरह दिख रहा है, जैसे ये है ना, ये ग्रेटर देन है, एक तरह से ग्रेटर देन का साइन है, ऐसी सिचुएशन है, देन इट इज अ फंक्शन। बाकी डोमेन जो है वो पहला सेट होना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन वन नीड टू बी श्योर ऑल अबाउट। और ऐसे में हम क्या कहते हैं, ये नोटेशन को देख लीजिए, एक्स वाई अगर बिलोंग करता है फंक्शन को, वी राइट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जैसे पॉलिनोमियल्स में आपने याद करिए 9th में और 10th में p ऑफ x लिखा था, जनरली वहां पॉलिनोमियल था p ऑफ x,
यहाँ फंक्शन है ऑफ एक्स वेरिएबल, तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया जाएगा। ये टर्म को समझिए, y जो है वो कहलाएगी इमेज ऑफ x, और x क्या होगा? फ्री इमेज ऑफ y। मीन्स अगर मैं एक सिंपल डायग्राम में फिर आपको दिखाऊं, यहां ये सिचुएशन, से दिस इज सेट x, दिस इज सेट y, 1 2 3 4 a b c d e, say 1 with a, 2 with b, 3 with b. Is it a function? Yes. Is it a function? No, sir. No, sir. Yes, it is not a function. आप चेक करिए, पहली कंडीशन ही फेल हो गई। अब क्या हुआ Because मैं all समझता elements of the X ये were not included. यस 4 को नहीं लिया है ना, चलो मैं 4 को ले लेता हूं d के साथ, राइट? तो अब आप चेक करिए, इट इज अ फंक्शन। Yes. x का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं होगा, एवरी एलिमेंट मस्ट बी यूज्ड अप। y का एलिमेंट वैकेंट हो सकता है, दैट इज इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग हियर। और फिर वो एक ग्रेटर देन का टाइप साइन दिख रहा है, दैट इज ओके। तो इस केस में अगर मैं चेक करूं, मैं क्या कहूंगा, f ऑफ 1 क्या मैंने दिया है? a, f ऑफ 2 इज b एंड f ऑफ 3 इज ऑल्सो b। सिर्फ इस पार्ट को देखिए, f ऑफ 1 अगर मैंने a लिखा है, इसके अंदर मैं क्या कहूंगा, इमेज ऑफ 1 इज a and free image of a is 1. Is this idea is clear? ये नाम रखा गया है, इमेज ऑफ 1 इज a। 1 के लिए a इमेज कहलाएगी। 1 से जब मैं a की तरफ देखूंगा तो 1 की इमेज तो a हो गई है, बट अगर मैं रिवर्स में a से देखता हूं 1 की तरफ, तो a के लिए क्या हो जाएगा, 1 विल बी एक्टिंग एज अ प्री इमेज। इज दिस टर्मिनोलॉजी इज क्लियर? Based on that understanding, quickly answer this question. What is the image of 4? Study. Sir, D. Okay, ठीक है, good. What is the pre-image of B? 2 and 3. 2 Yes, and 3. 2 and 3. What is the pre-image of C? Sun. Sir, no image. No image. No image. Yes. तो no pre-image. No pre-image. ठीक है? So idea is clear कि image जो है वो हमेशा define होगी, फंक्शन अगर है तो। प्री इमेज हो सकता है कि वो डिफाइन ना हो। सो फाइनल कंक्लूजन ओवर हेयर, ये जो यहां लिखा है f, अगर मैंने एक फंक्शन लिखा है x to y, तो यहां हमेशा डोमेन क्या है, x होगा, रेंज क्या है, दैट इज अ सबसेट ऑफ y। बट y को क्या कहते हैं, वो हमेशा कोडोमेन होगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट definition, terminology is being used here. चलो ये मैं ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर ही चुका हूं, रिलेशन एज अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर केस ऑफ अ फंक्शन की तरह हमने डिफाइन किया है। Let's consider few examples based on it. Starting with a simple question, NCERT का लिया है, एग्जाम्पल 10 है ये। ओके, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, रिलेशन r देखो क्या डिफाइन किया है, x, y
y is equal to 2x, x and y both are natural number. फर्स्ट पार्ट तो यही है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज बताओ इसकी। तो आर अभी तो हमारे लिए सिर्फ रिलेशन है, तो डोमेन क्या हो गया रिलेशन का? एनीवन? व्हाट इज द डोमेन? सर n N. N. इट इज नेचुरल नंबर n। x क्या वैल्यू ले सकता है? और कोडोमेन n So N. Sir, N. फर्क आएगा रेंज में। रेंज क्या है? What values your y can take? Think 2x. logically. a1 Yes, natural numbers. good. So that would be even natural numbers. Right. अब मैं इस चीज को सेकंड पार्ट कह रहे हैं, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए लेट मी कंसीडर द फॉलोइंग। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूं। हमें नेचुरल टू नेचुरल जाना है, तो इमेजिन दिस सिचुएशन। यहां पर नेचुरल है, यहां पर नेचुरल है, इधर x हैं सारे, इधर y है, एंड हाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ फार्मूला। y क्या है? 2x है, राइट? तो अब यहां 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सेम वे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन जा रहे हैं। अब इस डेफिनेशन को जरा अप्लाई करिए एंड मेक द एरो डायग्राम। It is a function. Sir, it is not a function. चलो देखते हैं। वन किसके Yes, साथ sir, it जाएगा? is a function. It is a function. वन किसके साथ जाएगा? यस, 2, 2, वन विद टू, टू विद 4 4, थ्री विद 6 6, फोर विद 8, 8 8. and 5 with 10, 6 with 12, 12. so on. Yes, sir, it is a function. Yes, तो अब आप सोचिए वो डेफिनेशन एरो डायग्राम के लिए, हर एक एलिमेंट की यहाँ पर इमेज एग्जिस्ट कर रही है। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ सोच लीजिए, आई कैन ऑलवेज हैव द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स इमेज, हेंस इट इज अ फंक्शन। तो बस ये चीज जो मैंने आपको वर्बली बताई है, आप इसे डायग्राम के बाद एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट से एक्सप्लेन कर देंगे। यस, इट इज अ फंक्शन। और वो जस्टिफाई क्या हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन कोडोमेन। एवरी एलिमेंट in domain have unique element, या एलिमेंट माने इमेज हो गई उसकी, इमेज इन कोडोमेन। तो अगर ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है फंक्शन की, बिलीव मी बहुत आसान लगने वाला है चैप्टर इन जर्नल। तो ये एरो डायग्राम की इमेजिनेशन is going to play a very, very important role. Make a note of it. I'm waiting. I just remember अभी किसी स्टूडेंट ने एक टर्म यूज करी थी, इट इज अ मैनी टू वन फंक्शन। फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, रिलेशंस की टाइप्स ऑफ रिलेशंस की हम बात करते हैं, but that is actually studied in class 12th, so इसीलिए I will not talk about that in journal. Anyone doubt? कोई पूछ रहा था अभी? yes sir. Yes. साइड बी के अंदर हम सिर्फ इवन नेचुरल नंबर्स नहीं लिख सकते? कहाँ पर? सेट बी में, मतलब सेकंड वाले में, सेकंड सर्कल के अंदर, मतलब ओवर के क्यों? अंदर। वो तो आपका सिर्फ रेंज हुआ है ना, और यहाँ आपका रिलेशन कैसे डिफाइन, ये रिलेशन जो डिफाइन करा गया था, रिलेशन आर जो है वो आपका नेचुरल पे डिफाइंड है,
तो नेचुरल का मतलब y तो वैसे तो नेचुरल नंबर होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी n आएगा। बाद में है कि हमने नोट करा कि भाई रेंज जो है वो इस डेफिनेशन की वजह से सिर्फ E1 वाली जा रही है, अदरवाइज तो कोडोमेन और रेंज में कुछ फर्क ही नहीं बचेगा, हमेशा वो इक्वल हो रहे हैं द वे यू आर थिंकिंग, राइट। तो थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाएंगे, एक दो क्वेश्चन और होंगे और बेटर क्लियर होगा। धीरे धीरे हम इनके फंक्शंस के ग्राफ्स की भी बात करेंगे। चेक आउट अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। As today we have 2 classes, next period भी है, तो what I have planned कि हम वही कंटिन्यू एक ही साथ करेंगे, बट जैसे अभी हमारा 11:20 हो रहा है, बीच में do not leave the class, there will be a break, I mean a silent break only for 2 minutes, 2-3 मिनट के लिए बस, मैं नहीं बीच में आपको पढ़ाऊंगा, बट do not leave the class, we will continue in the same class only। तो इस क्वेश्चन के बाद 3 मिनट्स का बस एक हमारा स्मॉल ब्रेक, बट बी इन अ क्लास ओनली। एक्स आपको डिफाइन करा गया है, वाई डिफाइन करा गया है। अब डेफिनेशन क्या है ये ध्यान से देखिए। डिफाइन अ रिलेशन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, वो ऐसे डिफाइन कर दिया। फिर वही कह रहे हैं राइट इन अ रोस्टर फॉर्म, डोमेन रेंज बताओ, show that f is a function। तो think logically, x y और ये आ गया है f, 2 3 4 5 और इधर क्या है 7 9 11 13 15 17। तो check it out। first thing, definition is important for me। y is 2x plus 3, राइट, और यहाँ x है और यहाँ y है, तो when x is 2, what is y? 7 7, तो 2 चला गया 7 के साथ, इसकी इमेज हो गई। when x is, नेक्स्ट क्या लेगा x वैल्यू? 2 3 3 by 9 9 it will be 9 clearly 9। when x is 4, 4 y is 11 y 11 y is 11, x 5 y and 13 5 13 and when x is 5, y is 13। 13 तो ये मेरे पास एरो डायग्राम बन गया। अब बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग सोचिए जरा ध्यान से। सबसे पहली बात रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो f क्या लिखा जाएगा? 2,7 3,9 4,11 5,13। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, सिंपल है। सेकेंड पार्ट में अगर डोमेन और रेंज कह दें, अगेन हार्डली मैटर, डोमेन वुड बी x आ गया सिंपली एक्चुअल में, और रेंज अगर आप ध्यान से देखें, रेंज 7 9 11 13 7 9 11 13। तो अब आप बताइए, इज इट अ फंक्शन? yes sir Yes, sir. वैसे भी इन्होंने कहा है शो करिए, तो शो के लिए आप क्या कह देंगे? सिंस every element of domain has unique image in codomain। यही तो हमने नोटिस करा है यहाँ पर। तो दिस इम्प्लाई f इज अ फंक्शन। फंक्शन के लिए मैं fn स्मॉल लिख देता हूं ऐसे, राइट। तो फंक्शन फ्रॉम x टू y। I hope the idea is clear. Okay, so we will have a only 3 minutes break। 11:22 है, 11:25 पे I will continue with teaching, but do not leave the class।
Okay, class. So let's continue after a small break. और वही है, आपको मैं 10 मिनट बस है और एक्स्ट्रा दे दूंगा ऐसे में, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस हो जाती हैं, तो नो वरीज, 10 मिनट्स पहले रफली आई विल एंड द क्लास. चेक आउट दिस क्वेश्चन. A is a set -2, -1, 0, 1 एंड 2, और F देखिए कैसे रिलेशन डिफाइन करा है अभी, फ्रॉम A टू Z. अब धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब जब ये नोटेशन आ गई है, देन वी एज्यूम, और वो आप चेक भी कर सकते हैं कि अब ये फंक्शन की बात हो रही है. तो आपके पास देखिए A तो फिक्स था, -2, -1, 0, 1 एंड 2, और अब यहां से Z में Z क्या होता है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स. इंटीजर तो यहाँ इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में भी आपके पास अगर यहाँ x है, a के अंदर अगर x है, तो यहाँ पर y है, विच इज ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म. तो आप चेक करिए, व्हेन x इज -2, व्हाट विल बी y. बस x की जगह -2 रख दीजिए एंड चेक दिस आउट, कितना आ रहा है ये? Yes. Is it okay? 5. Yes, sir. Next. When x is -1, चलो इसका मतलब एक तो ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, -2, 5. When x is -1, -1 whole square. So y 0. So 1 plus 2 -3, 0. तो सेकेंड ऑर्डर पेयर ये आ गया. ऐसे ही क्विकली मुझे निकालना होगा 0 के ऊपर. Y is -3. ओके, तो y विल बी 0 स्क्वायर -2 into 0, एंड दिस इज -3. तो ऑर्डर्ड पेयर आ गया 0, -3. 1 के ऊपर -4. एक मिनट, 1 -5 आया है. यस, -4. तो 1, -4, एंड फाइनली x क्या वैल्यू ले रहा है? 2 के इक्वल. तो y विल बी -3. ओके, -3. सो 2, -3. इसका मतलब आप चेक करिए, यहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं. मान लो यहाँ 0 है, तो -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन. और यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. बट अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई? -2 with 5, -2 with 5, -1 with 0. ये मैचिंग एरो डायग्राम से देख लीजिए. 0 with -3, then 1 with -4, 1 with -4 and 2 with -3. ये आ गया. Now once the arrow diagram is prepared, अब जरा सोच के बताइए, is it a function? Yes. यस सर. Yes, sir. Yes. दो चीजें आपको क्या याद रखनी थी? सेट A के सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, सेट B के साथ उनकी यूनिक इमेज जा रही है, और बाद वाले सेट में कोई एलिमेंट अगर बच भी जाता है, इट हार्डली मैटर्स. कमिंग टू द आंसर पार्ट, अब आप बस क्विकली लिख पाएंगे. चेक करिए फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ F. ये नोटेशन हम यूज करेंगे. यस, Sir, 5, -0, -3, -4, -3. यस. आप इसे और क्या लिख सकते हैं? -5, -3, -4, या -4 पहले लिख देता हूं, फिर -3,
एक ऑर्डर में बस मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेस कर दें, और दूसरी चीज रिपीटिशन को आप एक ही बार दिखा रहे हैं। तो ये क्या मैं लिखना प्रेफर करूंगा, इसे -4, फिर आ गया -3, फिर आ गया 0 और आ गया 5। रिपीटिशन को बस मैंने एक बार ले लिया है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा है प्री इमेज। तो व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 6? Sir, No no image. No image. No image. No pre-image. नो इमेज, यस, गुड। इसी तरह से -3 की, Zero. Sir, And 0. 0. My 2 and 0. -3 की इमेज क्या क्या है? 0 and 2 and 0. 2 and 0. 0 and 2, यस, ये भी है और ये भी है। तो मल्टीपल प्री इमेज पॉसिबल है। और 5 के लिए इमेज प्री इमेज -2. -2, दैट्स इट। सो आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर, प्रोवाइडेड आपको ये डायग्राम ये अगर समझ आ गया है कि कैसे हमने वैल्यूज को बनाया। Time for your attendance also. So Y or N in your chat box, is the idea clear? If yes, sir, Y, okay, quickly नाम आ रहे हैं, I can read, मैं पढ़ रहा हूँ, सभी के नाम देख रहा हूँ। ओके, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय क्लास में हैं, आंसर कम के आए हैं। तो should I consider this as only the attendance? Everything is on record, इस चीज को ध्यान रखिए क्लास। तो उसे ज्वाइन करने से बात नहीं होगी, मैंने बताया मैं रैंडम बीच में कभी भी पूछ के अटेंडेंस की फॉर्म में लेता हूँ। तो वो अब वर्बली भी मैं पूछ सकता हूँ आपका नाम लेकर, या सिर्फ यहाँ Y या N लिख दिया। Check out this question, very simple. I'm waiting, पहले पढ़ के देखिए आप। Examine each of the following relations given below and state in each case, giving reasons whether it is a function or not. So which method we should follow? Sir, So visual. visual method. Arrow diagram. Visual, arrow diagram. First वाला देखो ये है, तो It is a ये function. यहाँ 2 3 4 और 1 and 2 है। रिपीटिशन में एक ही बार लिखूंगा, तो 2 with 1, 3 with 1 and 4 with 2. Both the conditions are satisfied of a function, eligible function. Yes, unique image है। Similarly, you can talk about other parts. Third वाला बता दीजिए। Sir, Sir, third is also function. Third नहीं में वहाँ रुक जाओ। 1 2 3 4 5 Yes, it is 6 image. 2 3 4 5 6 7 और 1 with 2, 2 with 3, 3 with 4 and so on दिखाया है, right? Every condition is satisfied, it is a function. अब 12th में हम बात करते हैं कि इसका एक स्पेशल नाम होगा as the 1 1 and onto function. And 1 1 and onto function हमारा bijective function होगा, invertible होगा, and then we will be talking about the inverse of this function. तो वो सारे ideas are very very much related. तो जो चीज मैंने आज अभी की क्लास में बताई है, सेम कंसेप्ट आपका नेक्स्ट ईयर आने वाला है जब हम 12th में टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सोचो कि सब चीजें 12th में आप समझ लेंगे, दैट वुड नॉट बी पॉसिबल।
This is a simple definition. We may talk about the complex functions also, but syllabus में हमारा जो रहेगा वो सिर्फ हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शंस की। रियल नंबर्स में हमारा बात होगा डोमेन और कोडोमेन, अगर रियल टू रियल या उसका सबसेट है। तो माई फंक्शन कुड बी f maybe from natural number to integer, or I can have a function from integer to integer, or I can have a function from real to natural and so on. तो इस तरह के हम रियल फंक्शंस की बात करने वाले हैं। Equal functions. Two functions are said to be equal if their domains are equal, codomains are equal, and f of x is equal to g of x for every x. You will understand, I will take one example later on. फंक्शन की फेस वैल्यू अलग हो सकती है, मतलब देखने में वो अलग लगेंगे, but actually they are representing the same or equal function. That I will consider later, but definition simple है कि डोमेन सेम होना चाहिए और कोडोमेन सेम होना चाहिए, and at the same time एनी वैल्यू ऑफ x के ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज भी सेम आनी चाहिए। Based on your understanding, here comes a logical question for you. Let me see who answers with a simple understanding. और अगर आपने ध्यान से मुझे सुना हो तो एक मैंने f लिखा है, एक मैंने fx लिखा है. Which one of them is a function? f फंक्शन है या fx? fx. इतना आसान होता तो मैं पूछता नहीं. So both of them are But I function. think both No. of them are function. No, it is a function. f is a function. अगर f फंक्शन है तो fx क्या है? It is the value of a function f at the point x. Sir, it provides the value of y, fx. Understand this definition. ये basic idea में ही आए, and I know most of the students get confused. f और fx में f फंक्शन होता है और f of x डिफाइन करा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एट अ पॉइंट x. दोनों में फर्क को समझिए. तो मैं fx को कभी भी फंक्शन नहीं बोलूंगा. दो कई बार ऑथर्स या जो ट्यूटर्स हैं वो बोलते हुए बोल देते हैं कि fx फंक्शन है, जबकि आप कोई भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक देखेंगे या अदरवाइज ऑल्सो f इज अ फंक्शन, नॉट द fx. एनीवे, कंसेप्चुअल चीज है, एग्जाम में तो ये चीज नहीं पूछी जाती है, बट आई फेल्ट लाइक शेयरिंग विद यू. चेक दिस आउट. सोच के देखिए, अगर fx फंक्शन होता तो जो डिफाइन करा है f फ्रॉम r टू r, फिर ऐसे लिखना चाहिए था. ये नोटेशन होनी चाहिए थी, ये नहीं होती है. क्यों? क्योंकि f इज एक्चुअली रेफर्ड टू एज अ फंक्शन. फंक्शन को देखो ऐसे डिफाइन कर दिया है, whenever x is less than 0, x अगर less than 0 है, it is taking the answer as 3x minus 2. If x is 0, it is taking the answer always as 1, and for any x positive, the answer is 4x plus 1. Such type of definition of a function is known as a piecewise definition. या ये मेरा एक एग्जाम्पल है
पीस वाइज फंक्शन का। मैंने फंक्शन को ब्रेक कर दिया है इन डिफरेंट पीसेस। तो कैन यू आंसर नाउ फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज एफ ऑफ 2? 9. 9,2. एफ ऑफ 2 पूछा है सर, So एक्स 9. पॉजिटिव है, यस, तो नीचे वाली डेफिनेशन लगेगी आंसर। व्हाट इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट? So -8. अब की बार x है -2, नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव के ऊपर सबसे ऊपर वाली डेफिनेशन यूज होगी, आंसर। थर्ड पार्ट का आंसर 1. 0 के ऊपर द आंसर इज फिक्स्ड, 1। एंड फोर्थ पार्ट f ऑफ 3.5, बेसिकली कौन सी डेफिनेशन लगेगी बस ये बता दो। अच्छा लास्ट So वन. third. द थर्ड वन, आइडिया क्लियर है क्योंकि पॉजिटिव लिया है, तो 4 into 3.5 and then 1. What is the answer to say what is f of pi? सर इट्स एन इरैशनल नंबर. So what? फंक्शन मैंने क्या डिफाइन करा है? रियल टू रियल. लास्ट वाली क्वेश्चन। All irrational numbers are real only. Yes, someone gave some answer. What is f of pi? 4 pi plus 1. गुड। आप चेक करिए, x जब भी पॉजिटिव है तो यहाँ पाई 3.14 होता है रफली, पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर इसका क्या है? 4 पाई प्लस 1 ओनली। आंसर दी फॉलोइंग, व्हाट इज f ऑफ -√2? सर So 3 minus root 2 minus 2. यस, आप चेक करिए सुकेत, जैसे आप पूछ रहे हो सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट और सिक्स पार्ट मैंने सिमिलर लिया है। आप इनपुट को चेक करो, x क्या है? मैंने x को क्या लिया है? -√2, which is approximately -1.414 and so on, isn't it? अब x अगर नेगेटिव है, x नेगेटिव कहां पर है? यहां पर है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से लेफ्ट में हम बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में डेफिनेशन फंक्शन की क्या दे दी थी? 3x - 2, तो 3x - 2, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट, और कुछ सॉल्व नहीं होगा। Excuse me, sir. यस, So वो सेकंड पार्ट में -8 नहीं आएगा? 3 into -2 -2. माइनस, ओ यस, ये सम स्टूडेंट, मैंने फिर सॉल्व करा ही नहीं, किसी ने भी बोल दिया था आंसर, यस, वो मैंने इसलिए -9 लिख दिया, इट इज -8, यस, थैंक यू। चेकआउट चलिए, व्हाट इज f ऑफ 1/8? So 3. 1.5. Which definition is used? So Last 4x one. plus 1. ये वाली हुई है 4x Yes. plus 1, 1/2 plus 1, 3/2, 1.5 आंसर दे दिया था। हाँ ठीक है सुकेत, अब करेक्शन कर दिया है। आई होप द आइडिया इज क्लियर कि फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहे हैं और उसमें कैसे हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। In fact, we will also learn how to graph this function. हम इस फंक्शन का ग्राफ भी बनाना सीखेंगे, बट अभी वो बाद में आएगा। Based on this, ये आपकी एक्सरसाइज है आपके होमवर्क के लिए जो मैंने पिक करके रखा हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द डोमेन
एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। एक तो ये आपका होमवर्क आ गया, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 से अगर आप चेक करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आइडिया क्लियर है, एरो डायग्राम से करेंगे। थर्ड एंड फोर्थ आई एम श्योर आइडिया क्लियर होगा। Yes. फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व? तो फोर्थ क्वेश्चन एक बार होमवर्क में लिया है चाहे, बट यहां पर भी मैं लूंगा, अभी आप हल्का सा सॉल्व करेंगे हम इसे। चेक दिस आउट। नहीं नहीं, क्वेश्चन एक ही जगह करना है। असाइनमेंट वाले जो हैं वो आप असाइनमेंट में ही कंप्लीट कर रहे हैं, दो दो बार नहीं करना है। प्रैक्टिस करना है आप कितनी बार करो, बट फॉर मी एक बार होना चाहिए कम से कम। यस, चेक आउट दिस क्वेश्चन। द फंक्शन t विच मैप्स, एक्चुअल में फंक्शन का एक सिनोनियम होता है एज अ मैपिंग ऑल्सो, मैपिंग या मैप हो रहा है। तो f इज मैप फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो टेम्परेचर को कैसे लिंक करा है? डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में। एंड आई एम श्योर आपने ये साइंस में फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है। यस सर। सेल्सियस कन्वर्जन जब हम फ़ारेनहाइट वगैरह की करते हैं, राइट? तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये फॉर्मूला बताया है। नाउ व्हाट इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट? फाइंड T ऑफ 28। आप चेक करिए, जो अभी तक मैं F लिखता था, F ऑफ 28, तो बस F की जगह नाम उसका बदल दिया है, वो T कह दिया है। तो ये डेफिनेशन है मेरे फंक्शन की। तो C की जगह 28 रख देंगे, C की जगह 28 रख दिया। एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व। यस, क्लियरली वैल्यूज को ही तो पुट करना था। सॉल्व कर लीजिए। आई विल सर नॉट, 36.4, चलो ठीक है, वट एवर आंसर, 37.4। ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट का आंसर इजी है बताना। सो दिस इज 5 माइनस 10 हो गया, नहीं सॉरी, माइनस 18 हो गया ये, यस सर। एंड प्लस 32। सॉल्व इट, योर आंसर। कंसिडर फोर्थ पार्ट। अब की बार कह रहे हैं आपको T ऑफ C जो है वो 212 दिया है। फाइंड C। आप चेक करिए, T ऑफ C की डेफिनेशन तो मुझे ऑलरेडी ये गिवन थी, राइट? ये दोनों T ऑफ C हैं। आप इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, and you can easily solve to get the value. कितना आ रहा है आंसर देखिए जरा सॉल्व करके। Sir, 100. श्योर? बाकी भी एक बार जरा चेक करिए। Yes, sir, 100. ओके, चलिए ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
The idea is already discussed with you. सोचिए जरा आंसर सारे पार्ट्स के. यस, डेफिनेशन क्लियर है. पीस वाइज ऐसे कहा गया है. तो फॉर फाइंडिंग एफ ऑफ -2 क्या करेंगे? विच डेफिनेशन विल बी यूज्ड? सर x स्क्वायर. यस, फर्स्ट वाली आ रही है ना, x नेगेटिव लिया है. Sir, 4. The answer is simply 4. What is f of 1? For 1. Yes, चेक करिए, यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है 1 के ऊपर. तो what whenever this case the answer is simply x. तो अपने केस में x 1 हो जाएगा. Answer is 1. What is f of √2? Sir, 2. I'm waiting. root 2 by Sir, 2. No. sir 1 by root 2. Yes, good. आप चेक करिए, डेफिनेशन बदल रही है. जिसने अभी आंसर 2 दिया था वो स्क्वायर कर दिया आपने. Sir, बट वैल्यू गलत निकाल ली. यस, तो आपको कहाँ पुट करना था? whenever x is greater than 1, तो चेक करो √2 1.414 के अप्रोक्सीमेटली है. तो उस केस में आंसर सिंपली रेसिप्रोकल हो जाएगा उस नंबर का. So can you now answer f of -√3? Yes, class. Yes sir. Yes. अब हमने क्या नोट किया? माइनस ऑफ √3. ये कहाँ आ रहा है? नेगेटिव वैल्यू. डेफिनेशन कहती है जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दो. आंसर. एंड व्हाट इज f of 4/3? 3/4. दैट्स इट. अब डेफिनेशन को भी तो हमें समझना था. इक्वालिटी के लिए क्वेश्चन है, चेक दिस आउट. Find the domain for which the function fx and gx are equal. आप चेक करिए, अगर कहा गया है ये फंक्शंस इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? सिंपली ये और ये इक्वल हो जाएंगे. और इन्हें जब आपने इक्वल करा, नोट केयरफुली, रीअरेंज किया, आई एम गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताना क्या हो रहा है? Sir, plus 4x minus x. सो दिस स्प्लिटिंग के बाद तो
we have the values of x as -2 and 1/2. आप चेक करिए, आपसे डोमेन पूछा था, डोमेन का मतलब यही होता है ना, what values x can take. So x can be -2 or it can be 1/2. Your required answer. Check this out. कहीं भी डाउट है तो यू कैन आस्क. The last question for the day. F and G are real functions defined like this. ये fx है, ये gx है. आपसे पूछा है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. फर्स्ट और सेकंड तो इजीली पता चल रहा है क्या करना है. चलिए फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं. आपसे पूछा है f of 3 प्लस g of -5. f of x की डेफिनेशन मुझे पता है and g of x is already known to me. f of 3 क्या हो जाएगा, ये निकालना था ना, तो x की जगह 3 रख दो. कितना आ गया? सर 16. 16. और g निकालना था -5 के ऊपर, which is -10. ओके ठीक है सुकेत, आंसर मैं देख रहा हूँ साथ साथ. सो देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर वांटेड देयर सम ओनली. तो इनका सम आ गया 6 एज योर रिक्वायर्ड आंसर. सेकंड पार्ट सिमिलर है. थर्ड और फोर्थ को अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्थ का न्यूमरेटर अगर समझ आ गया तो थर्ड भी हो जाएगा. तो लेट मी डायरेक्टली नाउ सॉल्व द फोर्थ पार्ट. बहुत इजी है, समझो जरा इसका मतलब क्या हुआ है. f of t क्या होगा? सर t स्क्वायर प्लस 7. सर t स्क्वायर प्लस 7. t square plus 7 minus what is f of 5? 5 स्क्वायर प्लस 7. 32. 5 square plus 7 और नीचे आ गया as it is t minus 5. तो t square plus 7 minus कितना आ रहा था? 32. बताओ कितना आया ये? -25. t Sir, t plus 5 is the answer. t square -25. -25. yes. so I am sure आइडिया लग चुका है. t plus 5. फैक्टराइज कर देंगे. one of the factor will get cancelled out and the answer is t plus 5. Yes. Any doubt to anyone? चलिए. Sir, we are taking t as a variable. Yes, of course. It is a variable here. So answer will be in terms of that variable only. Okay, sir. चलिए, ending the class now. You can leave the meeting. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Good day. Bye bye. Yeah. Bye.